قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بندہ پروردگارم امت خیر الورا دوست دار چار یارم اہل بیت مصطفیٰ دانا تاب ہر ولی پاس بائے غوثنا مذہب حنفیہ دارم مسلک احمد رضا ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ آئیے حضرات ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شہ بزم جنت کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس و ضحا دافع جملہ بلا جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے امام فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں پیش کریں جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد تاج الشریعہ فخر اظہر فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسماں کر دیں سریا کو سرا کر دیں فضا میں اڑنے والے یونا اترائیں ندا کر دیں وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ مدرسہ فیضان رضائے مصطفیٰ میں جن طلبہ کرام نے قرآن کریم کو حفظ کیا ان طلبہ کرام میں سے ایک حافظ آپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹھا اور یہ سب محنت و کاوش کا ثمرہ ہے مدرسے کے مدرسین کا بالخصوص ہمارے کرم فرما مولانا افتخار احمد اشرفی صاحب قبلہ کا۔ پروردگار عالم ایسی شخصیتوں کو سلامت رکھے کہ جن کی محنت و کاوش کا ثمرہ ہے کہ آج اس مدرسے سے ایک حافظ قرآن بتایا گیا ہے کہ مدرسے سے اور بھی بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے لیکن ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم پہلے ایک محراب سنائیں گے رمضان شریف میں پھر اس کے بعد دستار بندی دیں گے۔ کئی بچے فارغ ہوئے ہیں الحمدللہ اس مدرسے سے قرآن کریم کو جنہوں نے حفظ کیا اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کیا۔ پروردگار عالم ان تمام لوگوں کو سلامت رکھے اور جنہوں نے ان حفاظ کرام کی امداد کی ہے یا ان کو کھانا کھلایا ہے یا ان سے محبت کرنے والے ہیں پروردگار سب کو سلامت رکھے۔ آج میں اپنی تقریر قرآن کریم کے تعلق سے کروں گا اور اس میں یہ بتاؤں گا کہ حافظ قرآن کی شان کیا ہے، حافظ قرآن کا مقام کیا ہے۔ آج ہم دنیاوی تعلیم کی طرف تو اپنے بچوں کو رغبت دلاتے ہیں، دینی تعلیم کی طرف ہم اپنے بچوں کو رغبت نہیں دلاتے۔ ہے کیا دینی تعلیم ہے کیا اور اس کا فائدہ کیا ملتا ہے یہ آج میں آپ کو اپنی تقریر میں بیان کروں گا۔ پروردگار مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرتبہ کیا کوئی جانے شہ بالا تیرا، مرتبہ کیا کوئی جانے شہ بالا تیرا، آسمانوں پہ ملائک میں ہے چرچا تیرا، تو سخی ایسا کہ حاتم بھی ہے منگتا تیرا،
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور ذوق میں جن کو نہیں جانے صبح کیا جانے، جو ہے آوارہ زباں لذت ہو کیا جانے، مردہ جانے بھلا گرمی لہو کیا جانے، تیری عظمت کو بھلا تیرے عدو کیا جانے، عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خود ربا عرش پہ اڑتا ہے خریرہ تیرا، خود ربا عرش پہ اڑتا ہے خریرہ تیرا، اور ڈوبنے والی ہے کشتی میری ساحل کے قریب، نہ خدا پار لگا دو یہ ہے کشتی غریب، تم سے کیا دور ہو جبکہ ہو تم اللہ کے قریب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ دیکھ لیتے جو کبھی سید عالم کا جمال، دیکھ لیتے جو کبھی سید عالم کا جمال، بھول جاتے تھے ہمیشہ کو امیہ کا جلال، یہی کہتے تھے رو رو کے حضرت بلال کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے دے۔ جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور میری تقریر جس شعر کے درمیان گونجے گی وہ یہ ہے کہ بخشش کی راہ مومنو آسان بنا لو، بخشش کی راہ مومنو آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو، دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو۔ دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو۔ اور گھر والوں کے لیے یہ مبارک بات ہے کہ جو بھی رسول پاک پہ قربان ہو گیا، جو بھی رسول پاک پہ قربان ہو گیا، مرنے کے بعد خلد کا مہمان ہو گیا، اور اللہ کی رحمت نے اسے گود میں لیا جس کا بھی بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مدرسہ فیضان رضائے مصطفیٰ۔ اللہ کی رحمت نے اسے گود میں لیا جس کا بھی بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ حضرات قرآن کیا ہے؟ رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ حضرات حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، حضرت عیسیٰ پیغمبر کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ اپنا دست مبارک جب بغل میں ڈالتے تھے اور جب بغل سے باہر نکالتے تھے تو وہ سورج اور چاند سے بھی زیادہ چمکتا تھا۔ آپ کے معجزے کو ید بیضا کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا معجزہ آپ کا یہ تھا کہ اللہ نے آپ کو عصا عطا فرمایا تھا، جو آپ کا ڈنڈا تھا وہ اتنے کمال والا تھا کہ خود قرآن کے اندر آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ دیتے تھے، جب لیٹتے تو وہ عصا تکیہ بن جاتا تھا، جب بھوک لگتی تھی اسے زمین پہ گاڑ دیتے تو اس پہ پھل آ جاتے تھے، اور جب فرعون کے مقابلے میں جب آپ گئے اور اس نے جادوگر بلائے تھے اور جب آپ نے اپنا عصا ڈالا تھا تو وہ اژدہا بن گیا تھا، ایک بہت بڑا سانپ بن گیا تھا جس نے اپنا نیچے کا جبڑا فرعون کے تخت کے نیچے اور دوسرا جبڑا محل کے اوپر، اور کہا کہ ابھی پورے تخت کے ساتھ میں فرعون میں تجھے نکل جاؤں گا۔ حضرات تو یہ موسیٰ نبینا علیہ السلام کا معجزہ تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب موسیٰ پیغمبر اس دنیا ظاہری سے تشریف لے گئے تو ان کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ لوہے کو جب آپ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو لوہا موم کی طرح پگھل جاتا تھا۔ یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ حضرت داؤد پیغمبر جب اس دنیا ظاہری سے تشریف لے گئے ان کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ مردے کو ٹھوکر مارتے مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، آپ اندھے کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتے تو اندھے
अंधे की आंखें वापस आ जाती। आप अगर किसी कोढ़ी के जिस्म पर हाथ फेर देते तो वो शिफा याब हो जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा पैगंबर को आसमान पर उठा लिया, उनका मौजज़ा उनके साथ चला गया। आज ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा आपकी निगाहों के सामने है, ना हजरत दाऊद का मौजज़ा आपकी निगाहों के सामने है, ना हजरत ईसा पैगंबर का मौजज़ा आज हमें देखने को मिलता है। लेकिन मेरे नबी की शान तो देखो, मेरे नबी का मकाम तो देखो, मेरे नबी की अजमत तो देखो, मेरे नबी की रिफात तो देखो। परवरदिगारे आलम ने जो मौजज़ात अलग अलग पैगंबरों को अता फरमाए थे, वो तमाम मौजज़ात को जमा करके परवरदिगार ने ज़ात मोहम्मद में अता फरमा दिए हैं। इसीलिए मेरा इमाम पुकार के कहता है, वो दुआई पाक मरियम वना तख्तो फीहि कातम है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। और यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम कहे खुदा। मेरे नबी के मौजज़ात में से एक मौजज़ा कुरान है। मैं जिस तरफ आपको लाना चाहता हूं, आप तवज्जो मेरी तरफ दें। मेरे नबी के मौजज़ात में से एक मौजज़ा कुरान है, और ऐसा मेरे नबी का मौजज़ा है जो 1450 साल पहले नबी पर नाज़िल हुआ था, आज भी देखने को मिल रहा है। और सुबह क़यामत तक नबी का ये मौजज़ा देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि कुरान वो अल्लाह की किताब है। रब फरमाता है वला रब्बि वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुशकर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद न हो। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो, उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। हजरात कुरान क्या है? आओ देखो, कुरान को अगर हम कुरान से मुश्तक माने, ये उलमाए किराम की दुआएं देते हुए अल्लामा इफ्तिखार साहब की तवज्जो करता है। अगर हम कुरान को कुरान से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी हर बार तिलावत की जाए। और तारीख बताती है दुनिया में कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसकी इतनी तिलावत की जाती हो या उसको इतना पढ़ा जाता हो जितना कुरान को पढ़ा जाता है। हज़रात कुरान सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। आप देखो, फजर में कुरान पढ़ा जाता है, ज़ुहर में कुरान पढ़ा जाता है, असर में कुरान पढ़ा जाता है, मगरिब में कुरान पढ़ा जाता है, इशा में कुरान पढ़ा जाता है। हमारे घरों पर कोई काले खैर हो उसमें कुरान पढ़ा जाता है। अगर हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए तब हमारे घर में कुरान पढ़ा जाता है। 10वें के मौके पे कुरान पढ़ा जाता है, 20वें के मौके पे कुरान पढ़ा जाता है, 30वें 40वें के मौके पे कुरान पढ़ा जाता है। हज़रात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा कुरान को पढ़ा जाता है, कुरान से ज्यादा किसी किताब को नहीं पढ़ा जाता है। हज़रात को पता चल गया ये कुरान ऐसी अल्लाह की किताब है जिसकी तिलावत बार बार की जा रही है। और आप कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, एक बार पढ़ेंगे दोबारा पढ़ने को आपका दिल नहीं करेगा। और ये कुरान की शान है कि कुरान को जितनी बार पढ़ते जाएंगे अलग ही मजा आता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मदरसा फैज़ाने वगाए मुस्तफा, नारे तकबीर। ये कमाल सिर्फ कुरान का है, जितना उसे पढ़े जितना उसे सुने उतना ही अलग लुत्फ आता है, अलग मजा आता है। उसके अलावा किसी किताब की ये शान नहीं है कि उसको बार बार पढ़ा जाए और इंसान को मजा आए। हज़रात ये कमाल और ये इम्तियाजी शान अल्लाह ने कुरान को अता फरमाई है। अब हम अगर कुरान को कुरान व क़िराअतन से मुश्तक माने तो माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए। और अगर हम कुरान को कुरान से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं मिलाना, इसके माना आते हैं जमा करना। हज़रात कुरान क्या है? नबी
फरमाते हैं कुरान की तिलावत को मत छोड़ो, कुरान तुमको नहीं छोड़ेगा। इस कुरान की सूरतों की जो तिलावत करता है कब्र के अंदर जब वो जाएगा और अजाब के फरिश्ते आएंगे तो सूरतें जो है कुरान शरीफ के अंदर 114 सूरतें हैं, ये सूरतें परिंदों जैसी शक्ल इख्तियार कर लेंगी। और अगर फरिश्ते पांव की जानिब से अजाब देने के लिए आएंगे तो सूरतें उस तरफ आ जाएंगी, नहीं इसको अजाब नहीं हो सकता। कहीं सूरह यासीन शरीफ आ जाएगी, कहेगी मौला ये मुझे तिलावत किया करता था, कहीं सूरह मुल्क आ जाएगी, मौला ये मुझे पढ़ता था। हज़रात आज हम अपनी जिंदगी का जायजा लें। आज हमारी आंख खुलती है तो सुबह को सबसे पहले हमें अखबार नजर आता है। आज हमारी आंखें खुले तो हम अखबार पढ़ते नजर आते हैं। आज हम अगर हमारी रात में आंखें खुल जाए तो हम कुरान नहीं पढ़ते, मोबाइल खोल करके उसके व्हाट्सएप के मैसेज चेक करते हैं। कभी हम फेसबुक को चलाने लगते हैं, कभी हम व्हाट्सएप को चलाने लगते हैं। ये हमारी जिंदगी गुजर रही है। जब से हम कुरान से दूर होते चले गए, मुसीबतों में गिरफ्तार होते चले गए। जब से हम कुरान को सीने से लगा करके रखे रहे, जब से हम कुरान की तिलावत करते रहे, किसी परेशानी ने हमारे घर का दरवाजा नहीं देखा। क्योंकि जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, अरे मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं जिस घर के अंदर 3 दिन तक सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर के अंदर कोई भी शैतान दाखिल नहीं होगा। हमारा ईमान व अकीदा इतना कमजोर होता चला जा रहा है कि हम कुरान को नहीं पढ़ते हैं, हम कुरान की तिलावत नहीं करते हैं। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं कुरान पढ़ नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह तो कुरान वो अजीम किताब है। रब फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। रब फरमाता है अगर हम कुरान को पहाड़ पर नाज़िल फरमाते तो तुम देखते पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता अल्लाह के खौफ से। ये उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। आप गौर करें, रब फरमाता है हम पहाड़ पर कुरान नाज़िल फरमा देते तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता अल्लाह के खौफ से। जब पहाड़ जैसी मजबूत चीज पहाड़ है क्या? रब कुरान में फरमाता है वल्जिबाला औतादा, हमने पहाड़ों को मेखे बनाया है। ये जो मकान आप बना हुआ देख रहे हैं, ये मदरसा जो आप देख रहे हैं, ये कालमों पे बना हुआ है। कालम अगर ना हो तो मकान कच्चा कमजोर रहता है। और कालम की ये खुसूसियत है कि आप कालम खड़े करते पूरा लिंटर कालम के ऊपर डाल दीजिए, दीवार ना भी लगाए तब भी लिंटर अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो कालम एक मजबूत और मुस्तहकम चीज का नाम है। पहाड़ क्या है? पहाड़ कालम है, पहाड़ मेखे है। रब फरमाता है अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाज़िल फरमा देते तो पहाड़ ऐसा रेज़ा हो जाता। हज़रात पहाड़ मेखे हैं। अल्लाह ने जब जमीन को पैदा किया इसके पानी के ऊपर पैदा किया, और पानी के अंदर ठहराव नहीं है, पानी हिलता रहता है। आप कभी भी तालाब के अंदर या दरिया के अंदर नजर डाल के देख लेगा, पानी ठहरता नहीं बल्कि हिलता रहता है। पानी के हिलने की वजह से जमीन और पानी के दरमियान बुखार पैदा हुआ। बुखार कहते हैं भाप को। जब भाप पैदा हुई तो जमीन हिलने लगी, जमीन में ठहराव नहीं था, और जब जमीन हिली तो परवरदिगार आलम ने पहाड़ों की मेखें लगाई, पहाड़ों के कालम लगा दिए, जमीन अपनी जगह पे ठहर गई। अब पहाड़ जैसी मजबूत चीज पर अगर कुरान नाजिल हो तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। मैं सोच में पड़ गया वो मजबूत चीज जिस पर कुरान का एक हर्फ नाजिल हो जाए वो रेजा रेजा हो जाए। आज हमारी कौम के भाई ने कुरान के 30 पारे अपने सीने में महफूज कर लिए, इनके सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? अरे जब पहाड़ रेजा रेजा हो जाए तो इनके सीने तो जल जाना चाहिए, इनके सीने तो खाकिस्तान हो जाना चाहिए थे। हज़रात लेकिन होता क्या है, 8 साल का बच्चा कुरान को याद कर लेता है, 10 साल का बच्चा कुरान को याद कर लेता है, 12 साल का बच्चा कुरान को याद कर लेता है। हज़रात मैं सोच में पड़ गया, जब पहाड़ जैसी चीज कुरान के एक हर्फ को उठाने के लायक नहीं, पहाड़ कहता है मौला मैं रेजा रेजा हो जाऊंगा, मौला मुझ पर कुरान नाज़िल न करना। पता चला कि कुरान के अंदर जलाल है। हज़रात अब ये जलाली कुरान पहाड़ पे नाज़िल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो
कौम के छोटे छोटे बच्चों ने अपने सीने में इसे कैसे महफूज कर लिया, इस कुरान को कैसे हिफ्ज कर लिया। तो अब मैं आपको मिसाल से समझा दूं। ये जो आप लाइट देख रहे हो मरकरी के अंदर, ये बल्ब के अंदर जो लाइट देख रहे हो, ये जो माइक के अंदर जो करंट का जलवा है, आप मुझे बताओ क्या ये लाइट जो है ये डायरेक्ट पावर हाउस से आ रही है या ट्रांसफार्मर के जरिए होकर के आ रही है? मैं मिसाल से समझा रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। ये जो लाइट आप देख रहे हो ये डायरेक्ट पावर हाउस से नहीं आ रही है बल्कि ट्रांसफार्मर के जरिए होकर के आ रही है। अगर जो इंसान ये कहते हैं कि हम पीर वलियों को नहीं मानते, वो कहते हैं हम जो है वलियों को वसीले के कायल नहीं है, उनसे कह दो डायरेक्ट पावर हाउस में जाकर के तार लगा दे, तब तुझे पता चलेगा तेरे घर का बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, तेरे घर की एसी चलेगी कि नहीं चलेगी। अरे बल्ब तो बाद में फ्यूज होगा, पहले तार लगाने वाले के अंदर से आग के जलने की आवाज आ जाएगी, वो जल करके खाकिस्तान हो जाएगा। पता चला कि डायरेक्ट पावर हाउस से लाइट नहीं आती है बल्कि पावर हाउस से लाइट आती है तारों के जरिए ट्रांसफार्मर के अंदर, और ट्रांसफार्मर उसे कंट्रोल करता है और फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर हल्का करके उस लाइट को जो है वो लोगों के घरों तक पहुंचाता है, और तार के जरिए वो लाइट आती है। जब उस तार ट्रांसफार्मर के बाद में जो तार आता है उसमें जब आप अपने घर के तार लगाएंगे तो आपके घर की मरकरी भी जल जाएगी, आपके घर का कूलर भी चल जाएगा, आपके घर की एसी भी चल जाएगी, आपके घर का फ्रिज भी चल जाएगा। अब किसान से मैं समझाना चाह रहा हूँ, रब फरमाता है कि अगर मैं कुरान को पहाड़ पर नाज़िल फरमाता तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। ये कुरान कहाँ उतरा है, ये कुरान कहाँ नाज़िल हुआ है? तो रब कुरान में फरमाता है नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। ऐ महबूब, ये कुरान को जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सीने पर उतारे हैं, ये कुरान जिब्राइल ने आपके सीने पर उतारा है, आपके दिल पर उतारा है। जब जलाली कुरान नबी के दिल पर उतरा, मदीने वाले मुस्तफा ने उस जलाली कुरान को जमाली कुरान बना करके उम्मत के छोटे छोटे बच्चों को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मदरसा फैज़ाने अल्लाह मुस्तफा, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कहता हूं कि बख्शिश की राह मोमिन को आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान, हाफिज़े कुरान और कुरान को हिफ्ज करने वाले की शान क्या होती है। अभी मैं बात कुरान पे कर रहा हूं, अभी हाफिज़े कुरान पे मुझे आना है। तो कुरान वो अल्लाह की किताब, ये पहाड़ पर नाज़िल हो तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए। मैंने जो कहा था ना कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। अब सुने, इमाम गज़ाली के दौरा से एक गैर मुस्लिम ने सवाल किया। किसने सवाल किया? गैर मुस्लिम ने सवाल किया। उसने क्या कहा कि हुजूर आपका दावा है कि कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। अपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की आयत है, वला रब्बी वला जाबिस किताबिन मुबीन, कोई खुशगवार चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान में ना हो। उसने कहा कि मैंने आपके कुरान को पढ़ा तो मैंने सितारों की चाल का जिक्र देखा। बहुत गौर से सुनिएगा, सितारों की चाल का जिक्र देखा। जो आसमान में आप सितारे देखते हैं ये दो अंदाज में चलते हैं, एक पॉजिटिव अंदाज में चलते हैं, दूसरे नेगेटिव अंदाज में चलते हैं। एक सीधी चाल चलते हैं, दूसरे उल्टी चाल चलते हैं। हजरात, तो उस गैर मुस्लिम ने कहा कि हुजूर मुझे सीधी चाल का जिक्र तो कुरान में मिल गया लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे कुरान में नहीं मिला। इमाम गज़ाली ने फरमाया तुझे हमारी किताब से सीधी चाल का जिक्र कौन सी आयत से मिला? उसने कहा हुजूर मैंने सूरह यासीन शरीफ पढ़ी थी, उसमें है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में चल रही है, हर चीज आसमान में तैर रही है। इस आयत से मुझे पता चल गया कि सितारों की सीधी चाल का जिक्र तो मुझे मिल गया। इमाम गज़ाली फरमाते हैं अगर थोड़ा और कर लेता तो उल्टी चाल का भी जिक्र तुझे मिल जाता। उसने कहा हुजूर आप बताइए, ऐ बिसौली के जिंदा दिल मुसलमानों, बहुत इल्मी बात करने जा रहा हूँ, ये उलमा मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। इमाम गज़ाली ने फरमाया
फरमाया कि तुझे कुरान में सीधी चाल का जिक्र कहां से मिला? उसने कहा कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरह यासीन शरीफ के अंदर जो आयत है मुझे उस आयत से जिक्र मिला है। आज हम कुरान पढ़ते हैं तो सिर्फ रस्मी तौर पे कुरान पढ़ते हैं। आज हम कुरान के अंदर कुछ गौरव खोज नहीं करते, सिर्फ रस्मी तौर पे पढ़ा और उठा करके ताक में रख दिया। बात घरों में तो कुरान शरीफ के जुल्तान के ऊपर धूल जम गई है, कुरान को खोलने की नौबत नहीं आती। हज़रात, ये आज हमारा मुआशरा है। आज हम जो है वो कुरान के अंदर कुछ तलाश करने के लिए नहीं पढ़ते, बस रस्मी तौर पे हम कुरान को पढ़ते हैं। और गैर मुस्लिम जब कुरान को पढ़ता है तो उसमें से कुछ तलाश करने के लिए पढ़ता है। आज हमारे कुरान पे रिसर्च हो रहा है, आज हमारे कुरान पे रिसर्च करके लोग समंदर से मोती निकाल रहे हैं। कुरान में है मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यब्ग़ियान, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। अमेरिका के साइंसदानों ने कहा कि कुरान में जब आया है कि दो समंदर जहां मिलते हैं वहां लूलू और मरजान पैदा होते हैं। जब समंदर के अंदर तह में जाकर के देखा तो वहां से हीरे और मोतियों को उन्होंने निकाल लिया। आज हम सिर्फ रस्मी तौर पे पढ़ते हैं, हम कुरान से कुछ तलाश करने के लिए नहीं पढ़ते। आओ जरा देखो, इमाम गजाली से गैर मुस्लिम ने पूछा कि हुजूर ये बताइए, सीधी चाल का जिक्र कुरान में है लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे कुरान में नहीं मिला। आपने फरमाया कौन सी आयत में मिला? उसने कहा कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है। अब उलमा की तवज्जो चाहता हूं, क्या है आयत करीमा? कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में। कुल्लुन में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, फी में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ या है, और फलक में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ लाम है, तीसरा हर्फ काफ है। कुल्लुन फी फलक। हज़रात, अब इसी को उल्टा करके देखें, फलक में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, मिला करके क्या होता है? कुल। अब बचा फलक का फा और इधर बचा या, मिला करके क्या होता है? फी। अब बचा फी का फा और इधर कुल का लाम और फिर काफ, मिला करके होता है फलक। इमाम गजाली फरमाते हैं अगर कुरान को कुल्लुन फी फलक करें, सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सीधी चाल मुराद है, और अगर उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो उल्टी चाल मुराद है। ये हमारा कुरान है जिसके अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। इमाम गजाली फरमाते हैं अगर हम कुल्लुन फी फलक पढ़े तब भी सीधी चाल मुराद है, अगर हम उल्टी तरफ से पढ़े तो उल्टी चाल। कुरान में हर चीज का बयान है। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है। तो सितारों की चाल का जिक्र भी कुरान में है। आज अमेरिका दावा करता है 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए। कितने में? 1969। एल्ड्रन कॉलिन बुश, 3 लोग जब चांद पर गए तो अमेरिका ने दावा किया कि ये हमारी तहकीक है। जर्मन की यूनिवर्सिटी ने दावा किया कि ये हमारी तहकीक है। सब अपना अपना दावा कर रहे थे कि ये हमारी तहकीक है। हम आज इस जिम्मेदार मिंबर रसूल से उलमा की मौजूदगी में दावे के साथ कहते हैं, ऐ अमेरिका तो आज दावा कर रहा है, हमारे कुरान ने 1450 साल पहले बता दिया था कि लोग चांद पर जाएंगे, और कुरान ने ये भी बता दिया था कि वो 3 लोग जाएंगे, और कुरान ने ये भी बता दिया था कि मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम। ये हमारा कुरान है। फरमाता है कुरान में, या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। ऐ जिन्न और इंसान के गिरोह, अगर तुम आसमान के किनारों से गुजरना चाहो तो गुजर जाओ, जहां जाना चाहो वहां चले जाओ। इतना याद रखना, जहां जाओगे वहां अल्लाह की बादशाहत पाओगे, वहां अल्लाह की सल्तनत पाओगे। पता चला लोग आसमान के किनारों से गुजरेंगे, पता चला लोग चांद पर जाएंगे। हज़रात, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे कुरान की शान क्या है। कुरान ने कैसे 1969 में इन लोगों ने दावा किया, क्या इसका जिक्र कुरान में आया है? क्या हमारे कुरान ने भी इसको बयान किया है? तो आओ अब मैं आयत करीमा पढ़ के सुना दूं। देखो कुरान के अंदर क्या है। रब कुरान में फरमाता है वल कमर इज़ा तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। ये हमारे
قرآن کی شان ہے کہ ہمارے قرآن نے یہ بتا دیا کہ لوگ چاند پر جائیں گے، قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ جانے والوں میں 3 لوگ بھی ہوں گے، قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہوں گے۔ حضرات تو اب کون سی آیت سے ثابت ہے؟ تو سنو، رب فرماتا ہے والقمر اذا اتسق، ماہ کامل کی قسم، چاند کی قسم جب پورا ہو، لترکبن طبقا عن طبق، تم ضرور سوار ہوگے اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی زینہ بائی زینہ، درجہ بدرجہ۔ حضرات قرآن آگے کہتا ہے فما لہم لا یؤمنون، تم کو کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاتے؟ اب علماء کی توجہ چاہتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لترکبن، یہ ترکبن رکوب سے بنا ہے، اور اب رکوب مصدر کے معنی آتے ہیں کسی چیز پہ سوار ہو کر کے جانا۔ کس پر سوار ہو کر کے گئے؟ وہ سائنس تھا، اپولو پہ سوار ہو کر کے گئے، جہاز پہ سوار ہو کر کے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کسی چیز پہ سوار ہو کر کے جائیں گے۔ اب یہ ترکبن جمع کا صیغہ ہے، اور علماء جانتے ہیں کہ جمع کا اطلاق کم سے کم 2 پہ اور 2 سے زیادہ پہ ہوتا ہے۔ کتنے 3 لوگ چاند پر گئے تھے، یہ ہمارے قرآن نے یہ بتا دیا کہ لوگ چاند پر جائیں گے۔ قرآن نے یہ بھی بتا دیا کسی چیز پہ سوار ہو کے جائیں گے، اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ 3 لوگ چاند پر جائیں گے۔ قرآن فرماتا ہے فما لہم لا یؤمنون، یہ علماء جانتے ہیں لا یؤمنون ایمان والے کے لیے نہیں بولا جاتا ہے بلکہ غیر مسلم کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہمارا قرآن کہتا ہے تم کو کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاتے؟ اب بتانا یہ مقصد ہے کہ جو چاند پر لوگ گئے اور چاند سے جب نیچے آئے، امریکہ والوں نے پوری سیدھی ان کی چھپا دی تاکہ ظاہر حق جو ہے وہ ظاہر نہ کر پائیں، سچ لوگوں کے سامنے نہ بتانے پائیں۔ ابھی چند سالوں پہلے ایک عورت گئی تھی جس کا نام سنیتا ولیم ہے، اور جب وہ چاند پر گئی اور جب وہاں سے زمین پر آئی، اس نے آ کر کے ایک انٹرویو دیا تھا اور میڈیا والوں کے سامنے کہا تھا اے لوگوں، جب میں چاند پر گئی تب میں نے زمین کی طرف جھانک کر کے دیکھا تو مجھے اذان کی آواز آ رہی تھی، اور سنیتا ولیم نے کہا مجھے ساری دنیا میں اندھیرا نظر آ رہا تھا، صرف 2 جگہ سے روشنی آ رہی تھی، ایک روشنی مکے سے آ رہی تھی، دوسری روشنی مدینے سے آ رہی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، عظمت قرآن، مدرسہ پیغام رضائے مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ یہ قرآن ہے، ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے۔ اتنا علم ہونا چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، قابلیت ہونی چاہیے کہ ہم قرآن سے وہ رموز و اسباب کو تلاش کر سکیں۔ حضرات اب بتا دوں میں آپ کو، آج امریکہ جو اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو لوگ چاند پر گئے ہیں یہ ہماری تحقیق ہے، اب سنو ہم لوگوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں، مسلمانوں نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہ کس پہ سوار ہو کر کے گئے؟ اپولو پہ سوار ہو کر کے گئے۔ تمہیں پتا ہے سب سے پہلا ہوائی جہاز کس نے بنایا تھا؟ کبھی غور کیا ہے اس بات پر؟ سب سے پہلا ہوائی جہاز جس نے بنایا ہے وہ ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان نے سب سے پہلا ہوائی جہاز بنایا ہے، جن کا نام حضرت عباس بن فرناس ہے، جنہوں نے مسجد قرطبہ میں بیٹھ کر کے قرآن کریم کو پڑھ کر کے پرندے کا تصور لے کر کے، یہ پرندے کو جو فضا میں مینٹین کر کے رکھتی ہے، جو بیلنس بنا کے رکھتی ہے، وہ پرندے کو اس کی پونچھ بنا کر کے رکھتی ہے، بغیر پونچھ کا ہوائی جہاز بنایا تھا، اور وہ 8 منٹ تک تقریباً فضا میں اڑا بھی ہے۔ لینڈنگ کے وقت میں کریش ہو گیا، تو یہ سب سے پہلا ہوائی جہاز کس نے بنایا تھا؟ یہ ایک مسلمان نے بنایا ہے۔ اور ایک یہ کاغذ جو آج آپ اخبار پڑھتے ہو، لائبریریوں کی کتابیں پڑھتے ہو، یہ سب سے پہلا کاغذ کس نے بنایا ہے؟ یہ بھی ایک مسلمان نے بنایا ہے۔ یہ گھڑی جو آپ پڑھتے ہو، یہ گھڑی سب سے پہلے کس نے بنائی تھی؟ یہ بھی مسلمان نے بنائی تھی۔ گھڑی بنانے والے کا نام حضرت عباس بن فرناس ہے۔ انہوں نے مسجد قرطبہ میں گھڑی نہیں لگائی، بلکہ دمشق کی جامع مسجد کے اندر وہ گھڑی سب سے پہلے لگائی گئی تھی۔ اور جس نے سب سے پہلا کاغذ بنایا تھا اس شخصیت کا نام یوسف بن عمرو ہے۔ یوسف بن عمرو نے روئی سے سب سے پہلا کاغذ بنایا تھا۔ حضرات روئی سے سب سے پہلا کاغذ بنایا گیا۔ آج جو کاغذ بنتا ہے وہ درخت سے بنتا
जाता है, दरख्त के गोले काटे जाते हैं, उसे मशीन में डाला जाता है, उसको बारीक पीस दिया जाता है, केमिकल डाला जाता है, फिर उससे कागज बनाया जाता है। पहले कागज सबसे पहला हजरत यूसुफ बिन अम्र ने रुई से कागज बनाया था। हजरत कागज क्या है? आप कागज को देखते होंगे, आपके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो उन स्कूल से जब बच्चे पढ़ के आते होंगे तो कभी कभी वो घर पे वर्क करते होंगे, घर पे काम करते होंगे। आज मैं आपको मिसाल से आपके अंदाज में समझा के जाना चाहता हूँ कि हमारे कुरान की शान क्या है, हाफिज़े कुरान की शान क्या है। देखो, अगर आपका ईमान ताजा न हो जाए तो कहना, कुरान की शान देखें। सबसे कागज के ऊपर आज लिखा हुआ क्या होता है? कहीं ABCD लिखी होती है, कहीं छोटा आ लिखा होता है। अगर बच्चा आगे बढ़ता चला जाता है, किताबें बदलती चली जाती हैं, किताबें चेंज होती चली जाती हैं, फिर वही बच्चा जब पढ़ जाता है, जब आला डिग्री हासिल कर लेता है, कोई पुलिस महकमे में चला जाता है, कोई जाकर के किसी पार्टी का लीडर बन जाता है। पढ़ने के बाद में जब वो आला मंजिल पे पहुंच जाता है, हजरात आपको किताबें जो अलमारी में रखी हैं, जो पहले दूसरे दर्जे की किताबें हैं, वो अलमारी में रखी हुई हैं। अब बेटा कहाँ एयर कंडीशन रूम में रह रहा है, अब बेटा स्कॉर्पियो कार से घूम रहा है, अब वो बेटा फॉर्च्यूनर से घूम रहा है और AC रूम में बैठा है। कोई उसी किताब को पढ़ करके कोई SDM बनता है, उसी किताब को पढ़ करके कोई CO बनता है, उसी किताब को पढ़ करके कोई LLB बनता है, उसी किताब को पढ़ करके कोई जज बनता है, उसी किताब को पढ़ करके कोई लीडर बनता है। हजरात, बताना मकसद ये है, उस किताब को पढ़ करके वो तो SDM बन गया, वो तो बेहतरीन मंजिल पे पहुंच गया। अब उस किताब का क्या होता है? जिसने शुरुआत में पढ़ा था, उस किताब को उसके वालिद ने उठाया और भंगार वाले के हाथ बेच दिया, और भंगार वाले ने उस किताब का क्या किया? दुकानों पे अलग अलग अंदाज में बेच दिया। दुकानदार ने क्या किया? उसे अपने साइज में काटा किताब को, किसी पे समोसा रख करके बेच दिया, किसी पे ब्रेड पकौड़ा रख करके बेचा, किसी पे जलेबी रख करके बेची। अब वो खाने के बाद में कागज जेब में नहीं रखा जाता है, बल्कि जमीन पे डाल दिया जाता है, उसे नाली में फेंक दिया जाता है। जिसने SDM बनाया वो तो कमरे में रहता है और बनाने वाला नाली में पड़ा हुआ है। जिसने CO बनाया वो तो नाली में पड़ा हुआ है, जिसने PM बनाया वो तो नाली में पड़ा हुआ है। अरे जिसने CM बनाया वो नाली में पड़ा हुआ है। हज़ार कागज एक है, सेम मशीन है, सेम दरख्त है, सेम केमिकल है, कागज एक ही है, लेकिन उस पर छोटा बड़ा लिखा हुआ नहीं है, बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, उस पर सूरह फातिहा लिखी हुई है। कागज एक है लेकिन लिखाई बदल गई है, उस पर बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। अब कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा, कोई मुहद्दिस फतवा नहीं देगा, कोई वली फतवा नहीं देगा। अरे परवरदिगार फरमाता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, इस कागज को बगैर वुजू के छूना भी मत। मैंने कागज से पूछा, ये कागज जरा ये तो बता दे, तुझे कमाल कैसे मिल गया? एक कागज नाली में पड़ा है और तुझे सीने से लगाया जाता है, तो कागज जवाब देता है, मेरे वजूद को मत देखो, बल्कि लिखे हुए को देखो। तुझे पता नहीं है मेरे सीने पर कुरान लिखा हुआ है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, असमते कुरान, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा फैज़ान रज़ाए मुस्तफा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। जिस कागज पर कुरान लिख जाए वो कागज मुमताज हो जाए, वो कागज शान वाला हो जाए। तो जिस हाफिज के सीने में कुरान रखती इस पारे आया शान वाला। सोचो, कागज पे कुरान लिख जाए तो कागज शान वाला हो जाए। हाफिज के सीने में कुरान आ जाए, उस हाफिज की शान का आलम। नबी फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, कुरान को अगर चमड़े में लपेट करके आग में भी डाल दिया जाए तो आग कुरान को नहीं जला सकती। आग कुरान को नहीं जला सकती। तो जिस सीने में कुरान महफूज हो, उस सीने को जहन्नम की आग कैसे जला? उस सीने को आग कैसे जला सकती है? लोगों, आप
आपने नाम सुना होगा हाफिज रहमत अली खां का, कभी सुना है? मज़ाक बता दूं आपको, बाकरगंज में आप जब उधर से आएंगे सिटी स्टेशन की तरफ से, तो